ملک میں آج یوم فضائیہ قومی جذبے اور جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ یہ دن ستمبر 1965 کی جنگ میں بھارتی جارحیت کے خلاف ملکی فضائی حدود کا انتہائی بہادری مہارت کے ساتھ دفاع کرنے والوں کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ 1965 کی جنگ میں بہادر ہوا بازوں نے محدود وسائل کے باوجود نہ صرف بھارتی فضائی جارحیت کو ناکام بنایا بلکہ بھارت کو اپنی بے مثال شجاعت کے ذریعے عبرتناک شکست سے دوچار کیا۔ پاک فضائیہ کے ممتاز پائلٹ محمد محمود عالم، جنہیں ایم عالم کے نام سے جانا جاتا ہے، نے 1 منٹ سے کم وقت میں بھارتی فضائیہ کے 5 طیارے مار گرانے کا ریکارڈ قائم کیا تھا۔ سیسل چودھری، سرفراز رفیقی اور ایسے ہی دوسرے شاہینوں نے آنے والے فضائیہ کے جوانوں کے لیے ایک معیار بھی طے کر دیا تھا۔ فضائیہ پر وزیر اعظم شہباز شریف نے پاک فضائیہ کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ آج کا دن پاکستان ایئر فورس کا اہلکاروں کی بہادری اور قربانیوں کی یاد دلاتا ہے۔ پاک فضائیہ نے 1965 کی جنگ میں ملک کا دفاع کیا۔ پاک فضائیہ کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنا میرے لیے فخر کی بات ہے۔ پاک فضائیہ نے اپنی پیشہ ورانہ صلاحیت اور طاقت سے فضائی مارکوں میں اپنی دھاک بٹھائی اور دشمن کو بھرپور جواب دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاک فضائیہ نے مارکہ حق بنیان مرصوص میں فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ پاک فضائیہ نے دشمن کو چاروں شانے چت کر کے دنیا کو حیرت زدہ کر دیا۔ سیلابی پانی سے ملتان کو خطرہ برقرار، 5 مقامات پر سیلابی پانی ملتان کو چھو رہا ہے۔ شیرشاہ بند پر ایک بار پھر اونچا سیلابی ریلا آئے گا۔ دریائے چناب میں تریموں کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب، پانی کا بہاؤ 5,51,000 کیوسک ریکارڈ۔ ہیڈ پنجنت پر پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ، پانی کی آمد اور اخراج 3,84,000 کیوسک ریکارڈ۔ پانی کا نیا ریلا 2 روز میں ملتان کے بندوں سے ٹکرائے گا۔ ڈپٹی کمشنر ملتان کہتے ہیں کہ نئے ریلے کی شدت میں زیادہ اضافہ ہوا تو بریچنگ پر غور کریں گے۔ دریائی علاقوں کے مکین دوبارہ گھروں کو جانے سے گریز کریں۔ ملتان اور گرد و نواح میں مزید بارش، سیلاب متاثرین کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ملتان کے قریب جلال پور پیروالا میں دریائے چناب میں ریسکیو کے دوران کشتی ڈوب گئی۔ 5 افراد جاں بحق، مرنے والوں میں 4 بچے اور 1 خاتون شامل۔ کشتی میں 20 سے زائد افراد سوار تھے۔ متعدد افراد کو نکال لیا گیا۔ ڈوبنے والے باقی افراد کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ حادثے کے بعد ڈپٹی کمشنر اور سی پی او کا رات گئے دورہ۔ ڈپٹی کمشنر ملتان نے حکام کو ریسکیو آپریشن تیز کرنے کا حکم دیا۔ سی پی او ملتان کا کہنا ہے کہ حادثے کی ابتدائی وجوہات میں شدید اندھیرا، دشوار گزار سیلابی راستہ بظاہر ہوتا ہے۔ علی پور کے معزہ عظمت پور میں حفاظتی بند ٹوٹ گیا، پانی بستیوں میں داخل ہو گیا، متعدد دیہات زیر آب آ گئے۔ ایک نوجوان کے جاں بحق ہونے کی اطلاعات ہیں۔ ڈمروالا جنوبی کے فلڈ بند کے نزدیک واقع بستی لاشاری میں 25 سالہ شعیب لاشاری کے ڈوبنے کی اطلاع پر ریسکیو کی ٹیمیں فوری طور پر موقع پر پہنچی اور نوجوان کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن شروع کیا گیا، تاہم نوجوان کی تلاش میں کامیابی نہ مل سکی۔ دریائے چناب، ستلج اور راوی میں طغیانی سے کئی بند ٹوٹ گئے، مزید درجنوں دیہات زیر آب۔ درخانہ کے قریب شورکوٹ سیکشن کی ریلوے لائن پر 50 فٹ سے زائد چوڑا شگاف پڑ گیا۔ شورکوٹ سیکشن پر چلنے والی 6 ٹرینیں متاثر۔ دریائے ستلج میں طغیانی سے پاک پتن اور عارف والا کی دریائی بیلٹ میں سینکڑوں بستیاں سیلابی پانی کی لپیٹ میں آ گئیں۔ ہزاروں ایکڑ زرعی اراضی شدید متاثر۔ سیلاب متاثرین ضلع انتظامیہ کی خیمہ بستیوں میں پناہ لینے پر مجبور۔ بہاول نگر میں بھی دریائے ستلج کے سیلابی پانی نے تباہی مچا دی، ہزاروں گھر مویشی پانی میں ڈوب گئے، فصلیں بھی زیر آب آ گئیں۔ جلال پور بھٹیا میں کھیت کھلیان بہہ گئے، گھر زمیں بوز، درجنوں خاندان کھلے آسمان تلے امداد کے منتظر۔ ساہیوال میں قطب شاہانہ کے مقام پر دریائے راوی کے بہاؤ میں اضافہ، پہلے سے مشکلات میں گھرے، سیلاب متاثرین کی مشکلات مزید بڑھنے کا خدشہ۔ گجرات کے کئی علاقے مسلسل 4 دنوں سے زیر آب، کاروبار زندگی معطل، 4 روز سے تعلیمی ادارے، سرکاری دفاتر، بازار اور دکانیں بند، گاڑیاں بند، کشتیوں اور ٹریکٹر ٹرالی پر سفر، شہری گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے نوٹس لینے اور دورے کے باوجود صورتحال بہتر نہ ہو سکی۔ سول انتظامیہ کی ناکامی کے بعد پاک فوج نے کنٹرول سنبھال لیا۔ ضلع انتظامیہ، واسا اور جہلم سے بلائی گئی ٹیمز کی جانب سے 4 دن سے جاری کوششیں مؤثر ثابت نہ ہو سکیں۔ پاک فوج نے کنٹرول سنبھالنے کے بعد لوارے چوک پر عارضی حفاظتی بند قائم کر دیا۔ صوبائی وزیر بلدیات ذیشان رفیق کا سیلابی پانی کے باعث ٹرک پر گجرات کا دورہ، کہتے ہیں کہ گجرات میں پانی کی نکاسی کے لیے اقدامات جاری ہیں، دوسرے شہروں سے بھی مشینری منگوائی گئی ہے، آئندہ 24 گھنٹے کے دوران پانی کی مکمل نکاسی ہو جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے گجرات میں سیوریج نظام کی بہتری کے لیے 20 ارب روپے کی منظوری دے دی، انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینک بھی بنائے جائیں گے، متاثرین کی ہر ممکن مدد کی جا رہی ہے۔
पंजाब के तीनों दरियाओं में ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब की वजह से पानी का बहाव 3,86,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। हेड सुलेमान के और पंजनत के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरिया रावी में शादरा के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। बुल्लोकी और सुधनाई के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरिया जनाब में चनियोट के मुकाम पर ऊंचे और तरेमों पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरिया सिंध पर गुड्डू सखर और कोटरी बैराज पर निचली सतह का सैलाब। सैलाबी पानी आज रात दरिया सिंध में दाखिल होना शुरू होगा। 8 सितंबर की दोपहर 7 से 8 लाख क्यूसेक का बड़ा सैलाबी रेला सिंध में दाखिल होगा। दरिया सिंध में गुड्डू के मकाम पर 7 सितंबर को इंतहाई बुलंद सतह के सैलाब का इम्कान है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि हुकूमत सिंध पानी के उतार चढ़ाव की सूरत हाल की मुसलसल निगरानी कर रही है। आवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल अलर्ट हैं। पाकिस्तान में बारिशों और सैलाब से जाँ बहक अफराद की तादाद 900 से तजावुज़ कर गई। मुल्क में अब तक 907 अफराद जाँ बहक और 1044 जख्मी हुए। पंजाब में बारिशों के बायस 223 अफराद जाँ बहक और 654 जख्मी हुए, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 502 अफराद जाँ बहक और 218 जख्मी हुए। सिंध में बारिशों के बायस 58 अफराद जाँ बहक और 78 जख्मी हुए, जबकि बलूचिस्तान में भी 26 अफराद जाँ बहक और 5 जख्मी हुए। गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों के बायस 41 अफराद जाँ बहक और 52 जख्मी हुए, जबकि आज़ाद कश्मीर में 38 और इस्लामाबाद में 9 अफराद जान की बाजी हार गए। एनडीएमए के मुताबिक बारिशों और सैलाब के बायस अब तक 7,848 मकानात को नुकसान पहुंचा, जबकि अब तक 6,180 मवेशी भी हलाक हो चुके हैं। मॉनसून के 10वें स्पेल का आगाज उमरकोट और थरपारकर में बारिश। कराची में तेज बारिश का इम्कान। आज से 10 सितंबर तक थरपारकर, उमरकोट, मीरपुर खास, सांगड़ और खैरपुर में बारिश हो सकती है। शहीद बेनज़ीराबाद, मुठियारी, टंडू मोहम्मद खान, टंडू अलायार, हैदराबाद, ठट्ठा, बदीन, सजावल और जामशोरों में भी तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। लाड़काना, शिकारपुर, कशमोर, सक्खर, जैकबाबाद और घोटकी में भी बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आज शाम से 11 सितंबर तक वक्फे से तेज बारिश का इम्कान है। शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग और नशेबी इलाकों में पानी जमा हो सकता है। पंजाब के बेशतर अजला में भी शदीद तूफानी बारिशों की पेशगोई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कैदियों की सज़ा में 180 रोज़ की खुसूसी मुआफ़ी मंजूर कर ली। सदर मुमलिकत की जानिब से ये मुआफ़ी आइन के आर्टिकल 45 के तहत वज़ीर आज़म की मुशावरत और इत्तफ़ाक़ राय से दी गई। विफाक़ी काबीना ने 100 रोज़ की मुआफ़ी सिफारिश की, ताहम मुशावरत के बाद सदर और वज़ीर आज़म ने इसे बढ़ाकर 180 दिन कर दिया। ऐवान सदर के एलामी के मुताबिक खुसूसी मुआफ़ी इन कैदियों पर लागू होगी जो कानून के तहत म्यार पर पूरा उतरते हैं। ऐवान सदर का कहना है कि कत्ल, दहशतगर्दी, जासूसी और बड़े मालियाती जराइम में सजा याफ्ता कैदियों पर माफी का इतलाक नहीं होगा। इस्लामाबाद में 50वीं बैनुल-अक़वामी सीरत-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस। वज़ीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ ने कहा कि हमें अपनी ज़िंदगी अस्वा हुस्ना के मुताबिक ढालना होगी। अल्लामा राग़िब नईमी ने कहा कि रियासत सोशल मीडिया के मनफी इस्तेमाल को रोकने के लिए बनाए गए क़वानीन पर अमल दरामद करे। अल्लामा ताहिर अशरफी की भी गैर तहक़ीक़ के वतन और मजहब से मुताल्लिक़ कोई खबर फैलाने से गुरेज की हिदायत। कहा कि मार्का हक़ के बाद दुनिया पाकिस्तान को फातिह की नज़र से देखती है। हनीफ जालंधरी ने कहा कि अगर हुकूमत इजाज़त दे तो अहले गजा के शाना बशाना जिहाद करेंगे। बहरीन के अल शेख आदिल बिन अब्दुर्रहमान ने पाकिस्तान को इस्लाम का किला करार दे दिया। काजी अल क़ज़्ज़ाज़ फ़लस्तीन डॉक्टर महमूद अल हब्बाश ने कहा कि पाकिस्तान और फ़लस्तीनियों का दिल और जान और ईमान एक हैं। बांग्लादेशी सदर के मुशीर मजहबी उमूर खालिद हुसैन ने कहा कि इस्लामी इक़दार में सोशल मीडिया पर अमेरिका से सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान लिए पहली परवाज नूर खान एयरबेस पहुंच गई। अमरीकी नाज़िमुल उमूर और कमांडर USR सेंट ने इमदादी सामान पाकिस्तान आर्मी के हवाले कर दिया। ISPR के मुताबिक अमरीकी आर्मी सेंट्रल कमांड के जरिए 6 परवाज़ों पर इमदादी सामान पाकिस्तान पहुंचेगा। इमदादी सामान में टेंट, डी वाटरिंग पम्प्स और जनरेटर्स शामिल हैं। इमदादी सामान पाक फौज के फ्लड रिलीफ कैंप्स के जरिए मुतासरीन सैलाब में तकसीम किया जाएगा। पाकिस्तानी हुकूमत और आवाम आजमाइश की घड़ी में सैलाब मुतासरीन के साथ खड़े होने पर अमरीकी हुकूमत और अफवाज के शुक्रगुजार। सैलाब की कवरेज में ABN न्यूज सबसे आगे। हर लम्हा की खबर, हर मुतासिर की आवाज़, ज़मीनी हकाइक नाजरीन तक लम्हा ब लम्हा पहुँचाने का सिलसिला जारी। मुल्कगीर नुमाइंदगी, बर वक्त रिपोर्टिंग। सैलाब की संगीन सूरत हाल पर ABN की शानदार सहाफत पर अवाम का इजहार एतमाद।
कराची के कई इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 15 घंटे तक पहुंच गया। लांढी, कोरंगी, औरंगी और मलीर में घंटों बिजली बंद। नाजमाबाद, नॉर्थ कराची, सुरजानी, C1 एरिया और लाइंस एरिया में भी बिजली गायब। किमाड़ी, हॉक्स बे, कायदाबाद, स्कीम 33, FB एरिया और नागिन चुरंगी समेत मुतादिद इलाके बिजली से महरूम। ओल्ड सिटी एरिया, न्यू कराची, सुरजानी, लाइंस एरिया में 15 घंटे से ज़्यादा की लोड शेडिंग। शहर के मुतादिद इलाकों में रात 12 से सुबह 8 बजे तक लोड शेडिंग मामूल बन गई। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक बर वक्त बिलों की अदायगी से लोड शेडिंग में कमी या इसका खात्मा मुमकिन है कि इलेक्ट्रिक का 70% नेटवर्क लोड शेडिंग से मुस्तस्ना है। जिन इलाकों में बिजली की चोरी है वहाँ लोड शेडिंग होती है। सारिफिन को मुफ्त बिजली फराहम नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने बैरूनी मुमालिक मुकीम पाकिस्तानियों के लिए कानूनी सहूलत सेल कायम कर दिया। ओवरसीज़ पाकिस्तानी व्हाट्सएप और ऑनलाइन पोर्टल के जरिए रुजू कर सकेंगे। केस की मालूमात और फैसलों की तस्दीक शुदा नकूल ऑनलाइन फराहम होंगी। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से मुतल्लिका केसेस का ही फैसिलिटेशन सेल में इंदराज होगा। एलामी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में जल्द समाअत की दरख्वास्त भी सेल के जरिए दी जा सकेगी। तमाम रिकॉर्ड डिजिटल तौर पर महफूज होगा। ट्रंप का यू टर्न, मोदी को कई बार तनकीद का निशाना बनाने के बाद दोस्त करार दे दिया। व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों के सवाल पर अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि मोदी हमेशा दोस्त रहेंगे। भारत और अमरीका का खास रिश्ता है, घबराने की कोई बात नहीं। दूसरी जानिब भारतीय वज़ीर आज़म मोदी ने सदर ट्रंप के बयान का खैर मकदम किया। मोदी ने एक्स पर बयान जारी करते हुए कहा कि सदर ट्रंप के जज्बात और हमारे ताल्लुकात पर उनके मुस्बत अंदाज को दिल से सराहता हूँ। भारत और अमरीका के दरमियान इंतहाई मुस्बत देरीना आलमी स्ट्रेटेजिक शराकत दारी है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता चंद माह से अमरीका और भारत के ताल्लुकात में सर्द मोहरी है और सदर ट्रंप मोदी को तनकीद का निशाना बनाते रहे। मोदी का मुसलमानों के दिलों पर वार। श्रीनगर की दरगाह हजरत बल के अहाते में अशोका का निशान नस्ब। कश्मीरियों में शदीद गम गुस्से की लहर। निशान तोड़ डाला। निशान तज़ीनो आराइश के काम के इफ्तिताह पर लगाए गए बोर्ड पर बनाया गया था। कश्मीरियों का कहना है कि बीजेपी और RSS ने अपने गमाश्तों के जरिए अशोका का निशान नस्ब करवाया, मगर हम किसी को भी इस्लामी तशख़्ख़ुस मिटाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। आज मुल्क भर में मुकम्मल चांद ग्रहण देखा जा सकेगा। स्पार्को के मुताबिक चांद ग्रहण रात 8:30 बजे शुरू होगा और 1:55 पर उरूज पर पहुंचेगा। चांद ग्रहण का इख्तिताम रात के आखिरी पहर में होगा। चांद ग्रहण पाकिस्तान समेत एशिया, यूरोप, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के मुख्तलिफ हिस्सों में वाज़े तौर पर देखा जा सकेगा। नामवर अदीब, अफसाना और ड्रामा निगार अशफाक अहमद को दुनिया से रुखसत हुए 21 बरस बीत गए। अशफाक अहमद का इंतकाल 2004 में हुआ था। नामवर अदीब को उनकी तसानीफ पर तमगा हुस्ने कारकर्दगी, सितारा इम्तियाज़ और हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा गया। उनकी मशहूर तसानीफ में गडरिया, एक मोहब्बत, 100 अफसाने, तोता कहानी, मन चले का सौदा और जाविया शामिल हैं। अशफाक अहमद को रेडियो पाकिस्तान के प्रोग्राम तलकीन शाह भी शोहरत हासिल हुई।